Hallelujah. My brothers and my sisters, greetings you all in the name of our Lord Jesus Christ. Today is my subject, New Humanity. Ephesians chapter 4 verse 22 to 25. मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज का मेरा मजमून है नई इंसानियत। इफिसियों उसका चौथा बाब उसकी 22वीं आयत से लेकर उसकी 25वीं आयत तक। यहाँ पर इस तरह लिखा है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ़रेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। आपस में झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़ू हैं। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से बरकत बख्शे, आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम कितनी खूबसूरत बातें सीखते हैं नई इंसानियत के ताल्लुक से, कि नई इंसानियत पहनने के लिए, नया इंसान बनने के लिए ज़रूर है कि पहले अपनी पुरानी हालत को, पुरानी ज़िंदगी को, पुरानी बातों को, पुरानी ख्वाहिशात को अपनी ज़िंदगी से तर्क कर दिया जाए और उन्हें छोड़ दिया जाए। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ़रेब की शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती है। फ़रेब की शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती है। और that you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to deceitful lusts, which grows corrupt according to deceitful lusts। और वो आदतें जो फ़रेब की शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती हैं, उनको उतार फेंको, उतार डालो। और ये फ़रेब की शहवतें कौन सी हैं जो हमें ख़राब करती हैं, हमें गुनाह की तरफ राग़िब करती हैं, जो हमें नई इंसानियत की तरफ आने नहीं देती। और वो कौन सी हैं जिनके ताल्लुक से यहाँ पर लिखा है, तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ़रेब की शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती है। ये फ़रेब की शहवतें कौन सी हैं? ये फ़रेब की शहवतें कौन सी हैं? जब हम
افسیوں کی خط کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کا 5واں باب اور اس کی 3 اور 4 آیت جب پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ فریب کی شہوتیں کون سی ہیں جو ہمیں خراب کرتی ہیں، جو ہمیں خراب راہوں کی طرف لے جاتی ہیں، غلط راہوں کی طرف لے جاتی ہیں، گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور آئیے ہم دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے کہ تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، نہ بے شرمی، نہ بیہودہ گوئی، نہ ٹھٹھا بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں برعکس اس کے کہ شکر گزاری ہو۔ اور یاد رکھیں کہ ہر طرح کی ناپاکی جو ہے، حرام کاری جو ہے، لالچ جو ہے، یہ پرانی خواہشات ہیں جو خراب کرتی ہیں۔ اور بے شرمی، بیہودہ گوئی، بے شرمی کی باتیں، بیہودہ باتیں، ٹھٹھا بازی، یہ وہ پرانی انسانیت ہے جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب کرتی ہیں اور خراب ہوتی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آؤ ہم حرام کاری اور ناپاکی اور لالچ اور بے شرمی اور بیہودہ گوئی اور ٹھٹھا بازی کو اپنی زندگی میں سے دور کر دیں، پھینکیں ان کو، اتار ڈالیں اپنی زندگی سے، کیونکہ ایسے کام مقدسوں کو زیبا نہیں دیتے، خدا کو پیار کرنے والوں کو، خدا کی حضوری میں رہنے والوں کو زیبا نہیں دیتے۔ اور ہمیں ان سب چیزوں کو اپنی زندگی سے پھینکنا ہے۔ But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not even be named among you, as is for sins. Hallelujah. Neither filthiness, nor foolish talking, nor curse jesting, which are not fighting, rather giving of thanks. برعکس اس کے کہ شکر گزاری۔ ہاللیلویہ، مبارک وہ لوگ ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جب ہم افسیوس کا 4 باب اس کی 24ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and truth and holiness. نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق پاکیزگی اور راست بازی اور سچائی میں پیدا کی گئی ہے۔
पाकीज़गी को अपनी जिंदगी में पहनो, नई इंसानियत को पहनो जो पाकीज़गी में पैदा की गई है, जो रास्तबाजी में पैदा की गई है और जो सच्चाई में पैदा की गई है। आपकी जिंदगी में सच्चाई, रास्तबाजी और पाकीज़गी नजर आनी चाहिए। सच्चाई और रास्तबाजी और पाकीज़गी नजर आनी चाहिए। जैसा कि इफिसियों की गलतियों के खत में हम पढ़ते हैं, गलतियों के खत में पढ़ते हैं, बड़ी खूबसूरत बातें हैं। गलतियों 5वां बाब उसकी 22वीं आयत में लिखा है, रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी, ये नई इंसानियत है। और खुदा के कलाम में लिखा है, पुरानी इंसानियत को उतार फेंको और नई इंसानियत को पहनो। नई इंसानियत को पहनो। आओ हम नई इंसानियत को पहने। मेरे भाइयों और बहनों, नई इंसानियत को पहने और अपने गुनाहों से तौबा करके, अपनी ख्वाहिशात से तौबा करके, उन पुरानी ख्वाहिशात से तौबा करके, लालच से, गुनाह से, हरामकारी से, नापाकी से, बेहुदा गोई से, ठट्ठाबाजी से तौबा करके नई इंसानियत को पहने। नई इंसानियत क्या है? आइए हम देखते हैं आगे चलकर नई इंसानियत और भी हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। एक तो हमने देखा कि नई इंसानियत सच्चाई, रास्तबाजी और पाकीज़गी है। और फिर जब हम रोमियो के खत का मुताला करते हैं, रोमन चैप्टर 13 वर्स 12 एंड 14, रोमियो 13वां बाब उसकी 12वीं और 14वीं आयत में हम देखते हैं कि नई इंसानियत क्या है। यहां पर लिखा है, The night is far spent, the day is at hand. Therefore let us cast off work of darkness and let us put on armor of light. Let us put on armor of light. पस तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। रात बहुत गुजर गई, दिन निकलने वाला है। तारीकी के कामों को तर्क करके नई इंसानियत को पहन लें। तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। रोशनी के हथियार बांध लें, रोशनी के हथियार पहन लें। और रोशनी के हथियार क्या है? रोशनी के हथियार मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है, तहम्मुल है, मेहरबानी है, नेकी